Hello everybody, I am Dr. Abdul Shafi Khan and you are watching my channel where you learn spoken English and English grammar and all those things which are necessary in your learning English and making your conversation fluently and speak English efficiently and without any hurdles and without any complications and without any obstacles. You will be able to form your sentence and think it in English, and it will be come out spontaneously without any pre-thinking in Hindi. Some people who wants to speak in English but they don't understand what should be they do in the very beginning. First of all, they learn some sentences, how to form it, and they know the words meaning, and when they try to speak it they translate into Hindi and they try to speak in English. It happens in a very first time, in a very beginning, but you need that. If you will be able to make your sentence with meaningful sentences, you should learn the grammatical formation of the sentence and the placement of words. If you will be able to make your words in a right placement, then it can be a help with the tenses, isn't it? And the forms of verbs, it is very necessary for the beginners here. You should know the variety of the words and the variety of sentences and kind of sentences, and after learning that you will be able to speak in English fluently. And after learning that, you need to make some mock situations which are very necessary for you. That for an example, if you go to school, what kind of words will you use frequently there? If you go to the hospital, if you go to any market, if you go to the any shop, it all depends on your situation, your condition, where you are. जहाँ जहाँ हम मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के वर्ड्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. इफ़ यू गो टू द school or any institution, you will use there frequently different kind of words which are related in your study, about the subjects, about the teacher, and about the your placement and what do you want to be in your life. These all words were very necessary for you. You should know all these words there. वहाँ आपको इन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज इन योर स्पीकिंग देयर. Suppose if you go to the hospital and you want to get some treatment, what kind of words you will use there, and what kind of diseases. You should know the name of diseases and the name of experts, doctor, and all these things which are फाउंड इन ऑल अराउंड यू. जो आपके आसपास जो चीज़ें नज़र आती हैं उनके बारे में आपको हिंदी में पता होना चाहिए, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, theme based conversation is very very necessary. So today I will describe you some sentences in the form of question and answer, like that. In which class do you study? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? In which class do you study? Do you read, we can say also. हम ये भी कह सकते हैं कि आप किस स्कूल, आप किस क्लास में पढ़ते हैं. In which class do you study, या in which class do you read. ये दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली. आप किस क्लास में पढ़ते हैं, और इसके लिए स्टडी और रीड दोनों वर्ड का यूज़ किया जाता है. आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, इन विच स्कूल डू यू स्टडी. अब दूसरा सवाल ये हो सकता है कि वहाँ पर आपके कितने बच्चे हैं. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल. आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं. तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सेंटेंस बना सकते हैं, और हम इसको बारी बारी से इन सेंटेंसेस को आगे बढ़ा सकते हैं. और जब ये क्वेश्चन हम थीम वाइज सीखेंगे, आज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एजुकेशन को हम आज प्रायोरिटी दे रहे हैं और एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम एजुकेशन के कुछ सेंटेंसेस आपको बताएंगे.
अब आपसे किसी ने पूछा इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तो आपने अपने स्कूल का नाम बताया, आई स्टडी इन या आई रीड इन सो एंड सो स्कूल। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इज इट गुड स्कूल, क्या ये गुड स्कूल है? आप कहेंगे ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल। बहुत से जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं वो हमारी लर्निंग में चार चांद लगा देते हैं, और हमारी जो लर्निंग और स्पीकिंग है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मीनिंगफुल बना देते हैं और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन आवर सिटी। हाउ कैन यू से दिस, आप ये कैसा कह सकते हैं? तो आर रिजल्ट्स आर वेरी गुड, हमारे रिजल्ट्स जो हैं वहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस देते हैं। इसके बाद में ये आता है कि अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं या 10th पास किए हुए स्टूडेंट हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपने किस स्ट्रीम को लिया है। स्ट्रीम यानी आपने कौन से विषय को यहाँ सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, और आप आगे व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तो अगर ये कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ या व्हाट डू यू वांट टू बी बिकम इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में क्या होना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, तो आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम हमारी जो एम्बिशन है, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हम उनको बता सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि विच बुक्स डू यू स्टडी फॉर दीज सब्जेक्ट्स, आप इन सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी किताबें पढ़ते हैं। तो मोस्टली आई स्टडी NCERT बुक्स, मैं ज़्यादातर NCERT की बुक्स जो है ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो फिर ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ गुड अबाउट दीज बुक्स, भाई इस बुक्स में जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है। तो दीज आर रिटन बाय एक्सपर्ट्स, ये एक्सपर्ट्स के ज़रिए लिखी गई है और ये सारी चीज़ें कवर करती हैं। व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ द बुक्स, इन बुक्स की कीमतें क्या होती हैं। दीज आर लो प्राइज्ड बुक्स, ये किताबें बहुत सस्ती होती हैं, लो प्राइज्ड। यहाँ एक वर्ड आया हुआ है व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ द बुक्स, कॉस्ट भी कह सकते हैं और प्राइस भी कह सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है कि कॉस्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है वहाँ जहाँ पर इसकी लागत पता करना हो, कि किसी चीज़ को हमने बनाया है तो उसकी हमें लागत क्या हुई है। तो लागत के माने हम जाहिर करते हैं कॉस्ट के ज़रिए। लेकिन अगर हमें प्राइस बतानी हो तो हम प्राइस बतानी हो या हमें उसकी रेट बतानी हो तो हम वहाँ प्राइस का यूज़ करेंगे उसका मूल्य बताने के लिए, और कॉस्ट का यूज़ करेंगे हम उसकी लागत बताने के लिए। तो इस तरह से हम स्टडी वाले सीन्स को कर सकते हैं। और इसमें भी पूछा जा सकता है आपसे कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं या आपके डैड क्या करते हैं। व्हाट डज योर मदर डू, आपकी मॉम क्या करती हैं। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि आपके कितने भाई बहन हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं। तो योर आंसर विल बी देयर आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है। अब इससे और क्वेश्चन अगर आगे बढ़ेगा आपका तो ये पूछा जा सकता है कि आपके भाई क्या कर सकते हैं। तो व्हाट डू योर ब्रदर्स डू, अगर एक भाई के लिए कहेंगे तो हमें कहना होगा व्हाट डज योर ब्रदर डू। 2 भाइयों के लिए व्हाट डू योर ब्रदर्स डू, 2 या 2 से अधिक के लिए। तो अगर आप सिंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको डज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है, और एक से ज़्यादा का यूज़ कर रहे हैं आप तो डू का यूज़ करना पड़ेगा। और जब आपको आंसर देना रहा कि मेरा भाई ये करता है, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, अगर किसी प्रोफेशन को बताना चाहते हैं, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, माई ब्रदर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, माई ब्रदर is a scientist, like this। तो whatever professional he has acquired there you can name them, उनका नाम आप उनको बता सकते हैं। what does your sister do, आपकी सिस्टर क्या करती है। तो अगर उसकी शादी हो गई तो आप कहेंगे ये she got married, भाई उसकी शादी हो गई है। अगर किसी ने पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं, how many children does she have, उसके कितने बच्चे हैं, तो आप ये कहेंगे शी हैज़
one children or two children, three children, या a child, she has a child, एक बच्चा है, she has two children, उसके दो बच्चे हैं, like this. और इसके बारे में अगर पूछा जाए कि भाई उसके हस्बैंड क्या करते हैं, तो फिर व्हाट डज हर हस्बैंड डू, उनके हस्बैंड क्या करते हैं. तो इस तरह से ये सेशन पूछना, करने वाला और एजुकेशन वाले सेंटेंसेस हमने आपको बताए हैं. उम्मीद है आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, एंड यू कैन राइट देम इन योर नोटबुक, एंड if you get your leisure time, try to read it out and make your sentence frequently. And if you will try to speak it regularly, then words will come out through your mouth and you will be able to form your sentence, you will be able to make your sentences in English. And there are एक बात और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है एक्सेंट और दूसरा होता है प्रोनाउंसिएशन. If any words you wants to say something there, and any words you want to tell to other children or your schoolmates or your friends, उनके साथ अगर शेयर करना चाहते हैं, तो don't commit mistake about your pronunciation of the words. तो शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें गलती नहीं होगी. एक्सेंट हमारा अक्सर ये होता है कि हम ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि ब्रिटिश एक्सेंट को हम उतना अच्छे से नहीं बोल सकते हों जितना इंग्लिश मैन बोलता है. बट एज फार एज कंसर्न आर स्पीकिंग, वी शुड ट्राई टू स्पीक इट वेरी वेल एंड विदाउट हैविंग एनी मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन. आर प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर. हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड शुड बी क्लियर. हमारा शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए ताकि वो हर किसी के समझ में आ जाए. तो आप निश्चित है मेरे चैनल आप ज़रूर देखते होंगे, और देखेंगे तो पाएंगे कि मैं थीम बेस्ड कन्वर्सेशन भी आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और ये भी बताता हूँ कि लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. दुनिया में जैसे हर तरह का एक पावर होता है, मनी पावर होता है, मसल्स पावर होता है, यानी पैसे का दम होता है या बाहुबल का दम होता है, ठीक उसी तरह से हमारी स्पीकिंग या जो हमारा कम्युनिकेशन पावर भी एक पावर होता है. इफ़ यू हैव अ गुड कन्वर्सेशन, इट विल बी इम्प्रेस टू अदर्स एंड यू विल बी गेट सक्सेस इन योर लाइफ. सो हाउ टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़, हाउ टू make our communication with the people, it depends on your success. If you want to get success in your life, you should try to learn it very well, and whenever you get your leisure time, and so speak it fluently and try to speak it regularly. So please keep watching my channel. We will meet again. Thank you very much.